Hello everyone, welcome to my online prep. This is the revision series for the CAIIB exam 2023 and this series is for the paper 4 of this exam, that is banking regulations and business laws. Today we have brought for you the chapter 5 of module A from this paper, that is public sector banks, private sector banks, regional rural banks, differentiated banks, cooperative banks and local area banks. तो ये चैप्टर 5 है. इसमें इन सारे बैंक्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें पढ़नी है. वील बी स्टडिंग दैट, वील बी रिवाइजिंग द टॉपिक थ्रू एमसीक्यूज एंड अलोंगसाइड जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो सके. ये रिवीजन सीरीज है यहाँ पे, क्योंकि अब टाइम कम बचा एग्जाम के लिए. तो स्ट्रैटेजी ये है हम लोग की कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें ताकि हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो सके. So this is being uploaded on the YouTube channel of my online prep, that is available for free, and other videos from this revision series. Also CAIIB के बाकी जो papers है उसके लिए भी series develop करके upload की जा रही है. So do subscribe to the channel so that you do not miss any video. These videos are very important from your revision point of view. Now let us see what all topics are covered under this chapter. So in this chapter, we study about the basics of the State Bank of India, about regional rural banks, other public sector banks, and application of the Banking Regulation Act to the public sector banks. How is disinvestment of shares by the government done? How the cooperative banks work, private sector banks, differentiated banks, and the local area banks. तो ये सारी जो categories हैं banking की, financial institutions की, हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं. हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे from the important topics. इस चैप्टर से जरूरी है कि आप हर एक बैंकिंग की जो बेसिक फंक्शनिंग है, उसका कॉम्पोजिशन है, उसको समझे. कौन से एक्ट से, रेगुलेशन से जो उनको गवर्न करते हैं, ये एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं. So now let us see what is the first MCQ from today's session. The first question is, which of the following provisions of the Banking Regulation Act are not applicable to the State Bank of India and the nationalized banks in India? So State Bank of India या फिर जो बाकी nationalized banks हैं, these are established by special statutes, and in such entities the majority stake is held by the government of India. ये government of India में होते हैं. So जो भी इसके statutes होते हैं, rules होते हैं, regulations होती हैं, these are framed and provided under the Banking Regulation Act, but the Banking Regulation Act is only applicable to them in a limited manner. मतलब कि उसके powers, functions और management जो भी banks के होते हैं वो limited way में ही Banking Regulation Act के अंदर आते हैं. अब कौन से उसके aspects हैं जो कि इसमें follow नहीं होते हैं? Given statements are provisions related to the capital requirements, provisions related to lending practices, provisions related to corporate governance, or the provisions related to customer deposits. So out of these provisions related to lending practices, ये Banking Regulation Act का apply होता है State Bank of India and nationalized banks में भी. Also the provisions that are related to customer deposits are also followed. But those aspects related to the capital requirements or the corporate governance ये cover नहीं होता है. So the right answer is 1 and 3, that is option D. इसके लिए इन दोनों ही टाइप ऑफ बैंक्स के खुद के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है. अब इसके अलावा जो बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इसमें मेजॉरिटी जो स्टेक होता है ये प्राइवेट पार्टीज का होता है. एंड बिगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं these were established after the 1990s under the Companies Act, और इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी अप्लाई होता है. Then in the case of cooperative banks, these banks are created and governed by the laws that are relating to the cooperative society. So cooperative society से होता है. अगर वो केवल एक स्टेट में कर रहे हैं तो फिर स्टेट एक्ट वर्क करेगा. If this cooperative banks are working in one state, then state act will be applied. और अगर वो अलग अलग states में तो फिर central act apply होता है इसमें. Also the banking regulation act ये भी cooperative banks में modified manner में apply होता है, which is mentioned in the section 56 of the act. Then we have the differentiated banks. Differentiated banks वो होते हैं जो कि specific sector, society या demographic segment को cater करते हैं. जैसे कि इसमें क्या आते हैं, फिनटेक्स बैंक आ सकते हैं, डिजिटल बैंक्स आ सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ सकते हैं, पेमेंट बैंक्स, ये सब डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं. एंड फाइनली द लोकल एरिया बैंक्स आर दोस जो एक टाइप डिफरेंशिएटेड बैंक्स का जो पहले सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉर पूलिंग एंड मोबिलाइजिंग द रूरल सेविंग्स.
और फिर फंड्स ऐसे अवेलेबल करवाते थे फॉर द क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज लोकल एरियाज। तो ये लोकल एरिया बैंक्स होते हैं। इसी तरीके से कितने प्रोविजंस हैं जो कि बैंकिंग लॉज के अप्लाई होते हैं, कौन से नहीं होते, ये हमें पता होना जरूरी है। इन द केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया, provisions related to the capital requirements and corporate governance. This is not followed for these two banks. So the right answer is D, that is 1 and 3. Moving on. The next question is, according to the State Bank of India Act of 1955, which entities are involved in the appointment of the chairman and managing directors of the State Bank of India? So State Bank of India इसको section 3 of the State Bank of India Act 1955 के अंदर establish किया गया था, so that to taking over of the undertaking of the Imperial Bank it was established। फिर जो भी उसका बैंकिंग बिजनेस था वो उसको कैरी ऑन कर सकता था। मोर ओवर इसमें जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं इट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई और शेयर होल्डर 10% से ज्यादा उसमें अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। अब पूछा क्या गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इसके लिए जो मेन रोल है या एंटिटीज है वो कौन सी इन्वॉल्व है? गिवन स्टेटमेंट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द लोकल हेड ऑफिसेस। तो आउट ऑफ दीज कौन सी एंटिटीज हैं जो कि इन्वॉल्व है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स? द राइट आंसर इज ए, दैट इज 2 and 3, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। नाउ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसका क्या रोल है? दे प्ले द रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अपॉइंटमेंट प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट करना है वो रोल होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। उसके अलावा जो फाइनल डिसीजन है इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनल डिसीजन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में होता है। तो दीज टू बॉडीज आर रिक्वायर्ड और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इसका मैनेजमेंट क्या है, क्या कॉम्पोजिशन उसके मैनेजमेंट का, फंक्शंस क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें हमें रिवाइज करना जरूरी है। सो हियर द राइट आंसर इज ए, दैट इज 2 and 3. नेक्स्ट, the question says, according to the Regional Rural Banks Act of 1976, which entities are involved in the management of the regional rural banks? तो अभी क्वेश्चन रिलेटेड है रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज आरआरबी से। सो अकॉर्डिंग टू द आरआरबी एक्ट ऑफ 1976 कौन सी एंटिटीज हैं जो कि इनके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है? गिवन स्टेटमेंट्स आर नाबार्ड, दैट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल बैंक, स्पॉन्सर बैंक और द स्टेट गवर्नमेंट। तो रीजनल रूरल बैंक का हमको पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि मैनेजमेंट में कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है? द राइट आंसर हियर इज 2 and 3, दैट इज ऑप्शन बी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक ये दोनों ही एंटिटीज रीजनल रूरल बैंक का मैनेजमेंट देखती हैं। अब जो स्पॉन्सर बैंक इट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द आरआरबी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर बैंक के पास होती है, while the central government has the power to give directions. Central government gives directions, they have the authority to give directions to the RRBs on matters of, कौन से matters पे कर सकते हैं? Related to policy that is involving the public interest. So दोनों ही entities important role play करते हैं in the management of the regional rural bank. So the right answer is option B, 2 and 3. Next. The next question says, which schemes have been framed by the central government for the management of the nationalized banks? तो nationalized banks के management के लिए central government ने कौन सी schemes दी हैं? The statements are Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provision Scheme of 1970, Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provision Schemes of 1980, the Banking Regulation Scheme of 1949 and the Banking Act Scheme of 1956. So in चार स्टेटमेंट्स में से एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए कौन सी स्कीम्स है? दीज आर 1 and 2, सो ऑप्शन बी, दैट इज नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम्स ऑफ 1970 एंड 1980, इन दोनों को लाया गया है ताकि नेशनल बैंक्स का मैनेजमेंट हो सके। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इन दोनों एक्ट्स के अंदर? इट इज रिलेटेड टू द स्कीम्स ऑफ डिटेल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, then appointment of the chairman as well as the managing director,
उसके अलावा जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा उनका कितने टाइम पीरियड के लिए, अदर डायरेक्टर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, वेकेशन ऑफ ऑफिस, मीटिंग्स कब होनी है बोर्ड्स की, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर दीज टू एक्ट्स। अब जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है या फिर जिसको हम कहते हैं अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई के अलावा, सो दीज आर आल्सो नोन एज द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये तब आए थे जब कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द banking companies acquisition and transfer of undertakings act that came in 1970। तो 1970 में ये एक्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, द एग्जिस्टिंग 20 private sector banks, these were transferred to the corresponding new banks that were established under these acts। जो nationalization acts थे उसके अंदर जितने भी 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था टू द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स, और फिर उसके मैनेजमेंट के लिए ये दोनों एक्ट्स को, स्कीम्स को लाया गया था ऑफ 1970 एंड 1980। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2। Okay, before we move on to the next question, here's an important information for you. You can now get free mock tests as well as free videos only on the My Online Prep app. ये केवल ऐप पे अवेलेबल है, आपको यहीं पे मॉक टेस्ट और फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले एंड अवेल दी सर्विसेज। आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी जो भी यूट्यूब वीडियोस है रिवीजन सीरीज के अंदर उनको देखो। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि हम लोग को एग्जाम के पैटर्न का आइडिया मिलता है, हमें पता चलता है कि किस तरीके का प्रेशर होता है, कैसे क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व करना है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, ये भी जरूरी होता है। और मॉक टेस्ट से ये सारी चीजों में क्लैरिटी मिलती है, सो रिवीजन एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। ऑल्सो मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग वीक है, फिर हम लोग फ्री वीडियोस को रेफर कर सकते हैं ताकि वो टॉपिक्स हमारे कवर हो जाए। सो वी एश्योर यू कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते, यू आर वाचिंग द यूट्यूब वीडियोस, यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल द मॉक टेस्ट एज वेल एज द फ्री वीडियोस, आप ये सारी चीजें करके इजिली 60 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। आपके एग्जामिनेशन में ये गोल अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड प्रैक्टिस ऑल द एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट फॉर योर रिविजन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which sections of the Banking Regulation Act of 1949 are applicable to all the covered banks? All the covered banks मतलब सारे banks that also include the SBI, other nationalized banks as well as the regional rural banks। तो ऐसे कौन से लॉज है या एक्ट्स हैं जो कि सब में अप्लाई होते हैं, कौन सा सेक्शन उसको कवर करता है? गिवन ऑप्शंस आर ए ऑल सेक्शंस ऑफ द एक्ट, बी sections that are modified by the SBI Acts, C sections that are modified by the Nationalization Acts, or D sections that are listed in section 51 of the Banking Regulation Act of 1949। तो वो सारे ही sections है, वो सारे ही laws जो सब पे apply होते हैं, nationalized banks, regional rural banks और state bank पे भी, वो सब है that are listed in the section 51 of the Banking Regulation Act of 1949। अब बाकी जो sections हैं वो शायद हो सकता है एप्लीकेबल ना हो, इट कैन बी मॉडिफाइड और इवन overridden, it can be modified or overridden by the provisions in the SBI Act as well as the Nationalization Act। तो केवल जो सेक्शन 51 में है ये हर एक बैंक पे अप्लाई होता है irrespective of whether they are under the SBI Act or the Nationalization Act। तो अब क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर आते हैं? इट इंक्लूड सेक्शन 10 that is prohibition of employment of managing agents and restrictions on certain forms of employment। जैसे कि अगर कोई पास में किसी एजेंट के ऊपर कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं लेना है। देन सेक्शन 13 to 15 that relates to the restriction on commission, brokerage, discounts etc। then section 17 it deals with the reserve fund, कि रिजर्व फंड को कैसे मैनेज करना है। आफ्टर दैट सेक्शन 19 to 21A that is related to the nature of the subsidiary company, the RBI powers to regulate the advances and so on। Also section 23 to 28 it deals with the restrictions on opening of new and transfer of the existing places of business, maintenance of the percentage of assets and so on। तो ये बहुत सारे ऐसे sections है जो कि इसके अंदर आते हैं, that is under the section 51। जो भी इसमें लिस्ट किए गए हैं ये हर एक बैंक पे अप्लाई
होता है. So the right answer is D, that is sections listed in 51 of the Banking Regulation Act of 1949. They are applicable to all the covered banks. Next. The question says, which factors have driven the mega merger of public sector banks? Mega merger यानी कि कौन से merger की बात कर रहा है? The merger of 2019. So 2019 में ये किसके अंदर आता है? This comes under the disinvestment, जिसमें कि जो भी पब्लिक सेक्टर होल्डिंग्स होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं वो क्या करते हैं? वो डिसइन्वेस्ट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं अपने होल्डिंग को. तो इसके अंदर व्हाट वर द फैक्टर्स दैट ड्रोव द मेगा मर्जर ऑफ 2019? Given statements are low level of capital, high level of NPAs, poor profitability of the entire sectors और high growth rate for the entire sector. अब इसमें से जो मेगा मर्जर हुआ था ये 2019 में हुआ था. इसमें क्या किया गया था? Merging of 10 public sector banks into 4 was done. This was as a part to create fewer and stronger global sized banks. Global sized लेंडर्स. ये इसलिए होता है ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको बूस्ट किया जा सके फ्रॉम अ 6 ईयर लो, बिकॉज ये काफी टाइम से बहुत लो चल रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ. और जो मर्जर्स हैं दीज वर बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट इज लो लेवल ऑफ कैपिटल which led to frequent requests for capitalization, क्योंकि कैपिटल की कमी थी तो फिर कैपिटलाइजेशन की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी एग्जिस्ट करती थी. देन द हाई लेवल ऑफ एनपीएस दैट वर प्रिवेलिंग, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, poor profitability of the entire sector. Like we said, 6 ईयर से जो ग्रोथ रेट था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये काफी कम था. एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ द इंटायर सेक्टर ये नहीं है. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? जो ग्रोथ रेट है ये कम था. सो दैट इज द low growth rate of the entire sector. So the right answer is 1, 2 and 3. That is option C. ये तीनों factors थे. इसके अलावा low growth rate of the entire sector that were responsible for the merger of the public sector banks. तो public sector banks जिनको merge किया गया था, the OBC Bank, that is the Oriental Bank of Commerce and the United Bank of India, इसको merge किस में कर दिया गया था? पंजाब नेशनल बैंक में. Then second, जो syndicate bank था, syndicate bank, it was merged with the Canara Bank. Then Allahabad Bank को merge कर दिया गया था. It was merged with the Indian Bank. इसके अलावा आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए थे. विजया बैंक और देना बैंक इट वाज मर्ज विद द बैंक ऑफ बड़ौदा. तो इस तरीके से ये मर्जर हुए थे. द 10 वर मर्ज इनटू 4. अब इसके अलावा जो मर्जर है इट विल बी treated so that the customers of the bank into which these banks have been merged, ये कब से इफेक्ट में आया? It has been effect from 1st April 2020. और अब इसके बाद after this merger there are in total 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए किया ताकि प्राइवेटाइज कर सके सर्टेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट स्टेप है. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 3. मूविंग ऑन. The next question is, which cooperative societies are exempt from using the words bank, banker and banking in their business name? तो कोई भी सोसाइटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो बैंकिंग में है तो उसको बैंक, बैंकर या बैंकिंग अपने बिजनेस नेम में यूज करना होता है. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कौन कौन से एग्जेम्प्ट है? गिवन स्टेटमेंट्स आर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, cooperative societies formed for the protection of the mutual interest of cooperative banks or cooperative land development banks. A cooperative society formed by the employees of the state bank, a subsidiary bank, a nationalized bank or a cooperative bank, or all cooperative societies are exempt from this provision. So पहले तो जो cooperative societies होती है ये या तो state act के अंदर आती हैं या फिर central act के अंदर. अगर वो केवल एक state में operate कर रहे हैं तो फिर वो state act में आएंगे, और अगर एक से ज्यादा states है तो वो central act के अंदर आते हैं. अब इसमें से जो cooperative societies है that are exempt, these are 1, 2 and 3, that is option C. इसमें से जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज है या फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए या फिर स्टेट बैंक है, सब्सिडरी बैंक है, उनसे स्टैब्लिश होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूजिंग दीज टर्म्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 3. The question says, which activities are the local area banks required to finance according to their scope of activities? तो लोकल एरिया बैंक्स इनको स्टैब्लिश कब किया गया था?
These were established in 1996 as a part of the private sector, and इनका जो main scope था, it was to cover areas of the rural sector and semi urban areas. तो यहाँ पे जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी में गैप था उसको ब्रिज करने के लिए, फिल करने के लिए, प्लस जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसको और ज्यादा इन्हांस करने के लिए, इन्हांस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। देन जिस भी एरिया में वो वर्क कर रहे हैं वहां पे कॉम्पिटेटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए इन्हें स्टैब्लिश किया गया था ना। वो एक्टिविटीज क्या हैं जो लोकल एरिया बैंक्स कवर करते हैं? दीज आर ए एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सी आईटी सर्विसेज और डी रियल एस्टेट डेवलपमेंट। सो द लोकल एरिया बैंक्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द एग्रीकल्चर एज वेल एज द एलिड एक्टिविटीज। इसके अंदर और क्या क्या आता है? द एमएसएमईज, देन agro industrial activities, trading activities related to agriculture, and the non farm sector, तो फिर बेसिकली कवर किसको करते हैं? एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज को। सो द राइट आंसर इज ए। एंड देन the next question is, private sector banks in India are primarily governed by which act? अब बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ये वो होते हैं जिसमें जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं, दीज आर द प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। और यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक या शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का नहीं होता है बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दीज आर बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। एंड इसके अलावा और कौन से एक्ट है जो इसको गवर्न करते हैं? स्टेटमेंट्स आर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1954। तो अब ये कंपनीज एक्ट के अंदर बने तो ये तो होगा, तो थर्ड राइट हो गया, विच वॉज लेटर सब्सटीट्यूटेड बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। देन आरबीआई की रेगुलेशंस भी इसमें अप्लाई होते हैं as well as the Banking Regulation Act of 1949. So 1, 2 and 3 that is option C. Banking Regulation Act of 1954 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। The right answer is C. अब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। These can be the old generation private sector banks and the new generation private sector banks. जो old generation private sector banks हैं, these came before 1968, मतलब ये 1968 से पहले से एग्जिस्टेंस में थे। एंड देन जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, दीज केम आफ्टर द 1990s। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था उसके बाद 1990s में न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए थे। एंड इन टोटल टुडे देयर आर 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एक एज मिला था जब ये लोग 1990s में न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टैब्लिश हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके पास पहले से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। दे गॉट द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उसके अलावा उन्होंने जो बाकी ओल्ड जनरेशन बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी गलतियों को देखा, उसको सुधार के फिर उसके बाद वो आए, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बेटर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया। इस वजह से आज के टाइम पे भी जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट and the last question for today is, payments bank as recommended by the Nachiket More committee focus on providing। तो पहले तो पेमेंट्स बैंक ये रिकमेंड किसने किया था? नचिकेत मोर कमिटी ने। इनका फोकस क्या है? वेदर इट इज स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, पेमेंट्स और रेमिटेंस सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटीज टू द एमएसएमईज और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग। तो पेमेंट्स बैंक दे वर एस्टैब्लिश्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंशियल बैंक्स। तो इनका फोकस क्या है? They focus on providing small savings account and payments and remittance services. So the right answer is A, that is 1 and 2. Credit facilities to MSMEs ये इसका पार्ट नहीं है और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के लिए भी ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज ये पेमेंट बैंक्स का मेन फोकस है। तो ये बैंक्स जो है किसको टारगेट करते हैं? दे टारगेट द माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट द लो इनकम हाउसहोल्ड्स, ये भी इनके टारगेट बेस का एक लार्ज पार्ट प्ले करते हैं। सो लो इनकम हाउसहोल्ड्स, देन स्मॉल businesses as well as other unorganized sectors, unorganized
सेक्टर एंटिटीज। ये सारे ही सेक्टर्स हैं जो कि पेमेंट बैंक के अंदर कवर होते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2. So with this, we have come to the end of today's session. We have discussed the chapter 5 from module A of this paper. And यहाँ पे हमने जितने भी MCQs डिस्कस किए हैं, अगर आपका कोई भी गलत आया है आंसर, सो यू नीड टू रिवाइज दैट टॉपिक अगेन, बिकॉज ये सारे ही टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं. Also, other videos are being uploaded daily on the YouTube channel of My Online Prep. Do like the video, subscribe to the channel so that you do not miss any videos. These are very important for your revision. Now we'll meet again in the next session. Till then, keep learning with us and thank you.